My dear students of class 10th, very good morning. I am Poonam Prasad with your third chapter, Nationalism in India of History. Students, you have already gone through with this chapter earlier, but here again, as this is a very important chapter, it is a compulsory to attend. वैसे compulsory इस बार के syllabus में ये है the chapter number 2, as well as we have to go through with the rise of nationalism in Europe. The two chapters we have to complete in this term, along with the fourth one, that is making of global world. So you have already gone through with this. Children, if we are talking about the introductory part of your chapter, that is the chapter at a glance. Yes, the chapter includes the introduction. It means the meaning of the nationalism, because the chapter suggests about the nationalism in India, the First World War and its effect or its impact on the economical, social, political scenario of India during 1914 to 1918, then Gandhian era, coming up of Gandhiji, Mahatma Gandhiji, and the concept of Satyagraha and numerous Satyagraha movement, then Rowlatt Act 1919, Jallianwala Bagh massacre again in 1919, then Khilafat movement, non-cooperation movement 1920 to 1922, Simon Commission, that is 1928, Dandi March, or what you can say the Salt March in 1930, beginning of your civil disobedience movement 1930 to 1934. It means it includes the two phases of the civil disobedience movement. Then students, in both the movement, the major movements that we have to discuss in this chapter, one was national non-cooperation movement, that is NCM, that is non-cooperation movement 1921 to 22, and civil disobedience movement. It means its effect, its impact, and the people participated in from every walk of the society. They have participated well in this movements, so we have to go through with this. Then comes with the limitation of non-cooperation movement and civil disobedience movement. It means we have to go through with the limitations of these two movements simultaneously. We are not going towards, but yes, first we have to go through with the non-cooperation movement according to the chronology, and then we have completed the civil disobedience movement, and later on we will discuss on the similarities and dissimilarities of these two. Then sense of belonging, collective belongingness, in which we will come across with the image of Bharat Mata, then flags, then symbols, you can say. We have to go through with that. We have to go through with that, and important dates, of course, the important dates and the related events of that dates. So starting with the introduction of the topic, that is your nationalism, student, a very important question in front of us is that what do you mean by nationalism? राष्ट्रवादी विचारधारा या राष्ट्रवादी होना या राष्ट्रीयता का मतलब क्या होता है नेशनलिज्म? स्टूडेंट, आप लोग अपने घर से बहुत प्यार करते हैं, अपने फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, अपने स्कूल से बहुत प्यार करते हैं, है ना? बेशक हम आपस में हम लोग एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहें, हम एक दूसरे से हम लोग शायद एक दूसरे के प्रति हम लोगों के मन में थोड़ा बहुत बैर हो, है ना? लेकिन जब अगर अपने ही घर में या अपने ही परिवार में, आस पड़ोस में, या अपने स्कूल से रिलेटेड कोई भी इशू उठता है या कोई भी नेगेटिव या कोई भी गलत बातें कहता है, तो हमारा खून खौल जाता है, हम उसको रिटेलिएट करते हैं, हम उनकी बातों को गलत कहते हैं, है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने परिवार से, हम अपने घर से, हम अपने समाज से, हम अपने आस पड़ोस से, हम अपने लोगों से बंधे हुए हैं, हम अपने स्कूल से बंधे हुए हैं,
उसी तरीके से द सेंस ऑफ बिलोंगिंग टुवर्ड्स द नेशन इज व्हाट वी कॉल्ड इट एज नेशनलिज्म। बेटा ये जो फीलिंग्स है ये वन डे टू डे की नहीं होती है, ये फीलिंग हमारे मन में हमारे जन्म से ही जुड़ जाती है, क्योंकि हमारा नेशन हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है, हम इस देश के वासी हैं। इट मीन्स येस वी आर इंडियन। ये हमारी फीलिंग है टुवर्ड्स द सेंस ऑफ बिलोंगिंग टुवर्ड्स आर नेशन इज़ व्हाट वी कॉल्ड इट एज नेशनलिज्म। ये देश हमारा है। द फीलिंग ऑफ वननेस, हम भारतीय हैं, यानी वी। सो दैट सॉर्ट ऑफ वी, द सेंस ऑफ वी, ये भारत में आया कैसे, कहाँ से आया, इसकी कहानी अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हम उसमें एंशियंट पीरियड में भी देखेंगे, मेडिवल पीरियड में भी देखेंगे और मॉडर्न पीरियड में। लेकिन इसका इम्पैक्ट मॉडर्न पीरियड में इसीलिए हुआ क्योंकि मॉडर्न पीरियड ऑफ टाइम में ब्रिटिशर्स वर कंसिडर्ड एज आर कॉलोनियल पावर एंड वी द इंडियंस वर अंडर द ग्रिप ऑफ कॉलोनियल पावर, ब्रिटिशर्स के अंडर में थे। आपका जो चैप्टर इंक्लूड कर रहा है वो इंक्लूड कर रहा है आपके 1914 से, इट मीन्स 1915 से लेके इट्स कम अप टू 1934। फाइन। अगर हम पहले के पीरियड में जाएं, एज वी ऑल नो अबाउट द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल इन 1857, ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा सा डिफर था, थोड़ा सा नहीं, जो आफ्टर दैट 1914 टू 1934 या 1947 की जो लड़ाई थी ये थोड़ी सी डिफर थी फ्रॉम द साइड ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इट वॉज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बेटा। लेकिन डिफरेंस कहाँ था कि इसमें द पीपल वर all united and they stood up against the Britishers. इसमें every people from every walk of the society, every section of the society they stood up against. लेकिन 1857 के वॉर में एक्चुअली में it was the war of the king, queens and the armies, you can say, the soldiers, है ना। यहाँ पे सीधी लड़ाई थी ब्रिटिश एम्पायर से, वहाँ पे लड़ाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से। लेकिन इम्पैक्ट यही था कि इंडिया वाज कंसिडर्ड एज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिशर्स वर continuously they were taken our resources in terms of either you can say money, culture, etc. एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने हर उनका इम्पैक्ट जो था, उनका कंट्रोल था, चाहे हमारी इकोनॉमी हो, चाहे हमारा पॉलिटिकल हो, चाहे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे हमारा इवन दो द कल्चर हो, सब पे वो उन्होंने एक तरीके से हमें गुलाम बना के रखा हुआ था। वी वर द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स और ब्रिटिशर्स ने हमें हर तरीके से ऑप्रेस करने की कोशिश की थी। सो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि वाई द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। क्या रीज़न था जिसके वजह से ये राष्ट्रीयता की भावना जो थी वो कॉलोनीज, उपनिवेश कहते हैं ना इसको हम लोग, एक कॉलोनी जो उस वक्त यूरोपियन नेशंस के थे, सिर्फ भारत में ही नहीं था बेटा, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी था, ये एशियन कॉन्टिनेंट में भी था, जो कि अंडर द ग्रिप ऑफ वाइट पीपल, इट मीन्स द वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों से वो दे वर अंडर द ग्रिप ऑफ देम। तो उनका एक स्ट्रगल था। तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ, क्यों ये नेशनलिज्म की भावना आई? So children, the very important, in several colonies, as I have already told you about, which includes India too, the growth of modern nationalism is intimately connected to anti-colonial movement. People, they begin discovering their unity, children.
in the process of their struggle with colonization, it means with the colonialism, the sense of being oppressed under the colonialism, it's provided a shared bondage that tied many different groups together. It means we understood about the dirty tricks of Britishers. उनके हमें उनकी जो आइडियाज़ था, जो हमें ये पता था कि एक्चुअली वी इंडियंस वर वेरी इनोसेंट एट दैट टाइम. हम लोगों ने तो उनको अपने देश में आने दिया एज अ व्यापारी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हमें हमारी regions को they occupied and they become a one, you can say, the British Empire. India were controlled by the British Empire. So ultimately Indians, ऐसा नहीं कि Indians ने struggle नहीं किया, लेकिन Indians को यूनिफाइड होके लड़ना ये सबसे बड़ी बात थी. और हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करना, यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है बेटा. इज दैट क्लियर? क्योंकि हम ये मानते हैं कि एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी व्हेन दे कंबाइन टुगेदर, व्हेन दे यूनिफाइड टुगेदर, वो एक सबसे बड़ा हम कह सकते थे वेपन था इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिशर्स. फाइन स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक इसमें है, दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918 ऑन इंडियन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा. देयर वर द टू ग्रुप्स, फर्स्ट Axis and second allies were there. Can you name the countries that were under these two groups? Allies में थे Britain, that is France, USSR, and in 1917 joined by USA. Fine. And in Axis group, Germany, Ottoman Turkey, and Austrian Hungary. These were the you can say countries who supported Germany, and they formed another power that was called as your Axis power. Result 1919 में end हुआ, 1918 में end हुआ. Result, the Allies won the war. 4 साल की लड़ाई, लेकिन इस 4 साल के अंदर भारत के फाइनेंशियल्स, भारत के पॉलिटिकल, भारत का सोशल इम्पैक्ट पड़ा. और क्वेश्चन आपके सामने आता है, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया. क्वेश्चन ये भी आएगा, और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज़ पुट or has created a new economic and social situation in India. How can you say that? Students, First World War has impact. Indirectly, directly India were under this war. अगर हम कहें डायरेक्ट तो नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट में महाशक्तियाँ थी. इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, और चूँकि ब्रिटेन वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ दिस वॉर, तो हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली इंडिया वर कंसिडर इटसेल्फ एज इन द वॉर. उसने अपने आप को कंसिडर किया और इंडिया के रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल किया ब्रिटिशर्स ने. तो इसने कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीयता की भावना को उजागर करने में सबसे महत्वपूर्ण काम किया. वो किसने? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सो अगर हम ये बात कहें, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर they created a new economic and political situation in India. Like if we are talking about the increase in defense expenditure, of course बेटा लड़ाई थी, 4 साल लड़ाई रही. हर
you can say on the land, on the sea and in the air also. It led to a huge expenditure in terms of defense. Defense में काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ, which was financed by the war loan and increasing taxes बेटा. ब्रिटिशर्स का खजाना खाली हो रहा था, भरने के लिए उन्होंने इंडियन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, इंडियन टैक्सेस का. इंडियन यानी कि इंडियंस वर हाईली इम्पोज टू पे द टैक्सेस बेटा. उस वक्त की सिचुएशन जब इंडिया की सिचुएशन खुद बहुत ज़्यादा डिक्लाइन थी, खासकर फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल क्राइसिस था. सो ये एक सबसे बड़ा इफ़ेक्ट था कि राष्ट्र की भावना को जगाने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट था कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर हो रहा था, कि इंडिया तो नहीं कह रहा था, बट इंडिया चूँकि वो कॉलोनी था ब्रिटिशर्स का और ब्रिटिशर्स वॉर में थे, तो अल्टीमेटली इट गोज़ टुवर्ड्स दिस. द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड and income taxes increased. The new taxes that was called as income taxes introduced during that period of time. Then most important, through the war years, the prices they increased, prices of the commodities they increased, leading to extreme hardship for the common masses, especially the people of the rural India or the people of the countryside. Of course, इसका सीधा असर एग्रीकल्चर प्राइसेस पे पड़ा, इसका सीधा असर लोगों के लाइवलीहुड पे पड़ा और अल्टीमेटली क्या हुआ, द पीपल वर अंडर यू कैन से ग्रिप ऑफ द सब्सिस्टेंस क्राइसिस. लोगों की लाइफ जो थी वो एक्सट्रीम हार्डशिप थी, खाना नहीं था, भुखमरी थी, स्टार्वेशन वर देयर. विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन, द विलेजर्स दे वर कॉल्ड अपॉन फॉर सप्लाई ऑफ द soldiers. That was considered as a forced recruitment. खासकर पंजाब या रूरल इंडिया में जो रूरल एरियाज था, that caused the widespread anger among the people of India. इंडियंस खफा हो गए. क्यों? क्योंकि इंडियंस नहीं चाहते थे लड़ना, लेकिन उनको ज़बरदस्ती फ्रंटियर्स पे भेजा जा रहा था, वॉर फ्रंटियर्स पे, और जिसके वजह से अल्टीमेटली इट कॉजेज व्हाट यू कैन से एक एंगर था, इट रेज द एंगर अमंग द पीपल ऑफ द विलेजेस. देन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यू टू द फेलियर ऑफ क्रॉप्स. देन 1918 और 1919 वर कंसिडर्ड बेटा, इट वॉज एंडेमिक उस वक्त आया था, दैट वॉज जैसे हमारा अभी कोरोना वायरस है, दैट वॉज कॉल्ड एज स्पेनिश फ्लू, जिसने तकरीबन 5 करोड़ लोगों की जानें ली थी. इट वॉज अ ह्यूज इम्पैक्ट ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम. तो उसका असर भारत पे भी पड़ा. तो अल्टीमेटली ये जो हार्डशिप था, इट लीड्स द लाइफ ऑफ द पीपल in terms of severe, or you can say severe hardship or extreme hardship during the period of 1918-19. And in 2021 it made the life of the common people miserable. Children, बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी. People hoped that their hardship would end after the war was over, but that did not happen. All this helped in the growth of national movement in the country. स्टूडेंट्स एक था कि हो सकता है ये वॉर हो और ब्रिटिशर्स हमें छोड़कर चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अल्टीमेटली भारत की स्थिति और ज़्यादा दयनीय होने लगी और वहाँ पर आए देन कम्स टू गांधीनियन एरा. चिल्ड्रन, कल की क्लास में हम लोग लेंगे अबाउट द गांधीनियन मूवमेंट, अबाउट द गांधीनियन एरा, द कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट and the various satyagraha movement in 1916, 17 and 18. Gandhi ji was returned from South Africa in 1915. Fine. उसके बाद के हालातों पे हम लोग कल we can take in our lecture the Gandhinian period, you can say, and the new concept of non-violence and truth, that is called as Satyagraha movement. Fine.
Till then children, take care, goodbye.